Hello everyone, welcome, good evening. I am Dr. Aman Khera. I am co-founder of Care for Parents and I welcome you today to this very interesting discussion about fitness exercises in the elderly. We all know that it is very important for to do exercises. It is a very well-known fact. But what happens is that a lot of questions come in our mind as to what is the right kind of exercise I should be doing. Why should I be doing exercise at all on the first of it? And how much exercise should be done? I have pain in my knee joints. What should I be doing? I have pain in my neck. What should I be doing? So on and so forth. So today, let's start with the first question: and why is exercise very important as we grow, as we age? What happens is that as we are aging, our activity, physical activity tends to go down. We have seen that children are more active, they are playing around. As they grow into adults, young adults, the activity does reduce, but still they are active because they are working. But after a certain age, post retirement especially, what happens is that the activity level goes down a lot. And knowingly or unknowingly, our diet intake also goes down when the activities are less. So as a result, what happens is that the nutrients, the proteins that we are supposed to be taking, all that reduces. And this has a direct effect on our muscles. Our strength of our muscles, our muscle mass, all this decrease. And this causes weakness of the muscles, resulting in instances in which there could be loss of balance. Probably we get tired early. Probably we are not able to stand from a sitting position, so on and so forth. And many times people injure themselves because of the weakness of the muscles. Also, it is known that exercise helps in controlling diabetes, it helps in controlling high blood pressure, it helps in preventing strokes, it helps in improving mental health because it is known that regular exercise reduces some feel good factor hormones in the body. Also, exercise also helps in delaying or probably avoiding stage of dementia. It is known, medically proven, that regular exercises help in controlling pain of the joints. Be it the knee joint, people complain of pain in the neck, in the cervical region, pain in the lower back. Regular exercise helps a lot in controlling these pains. So much is for why exercise should be done. We have understood, yes, exercise is very important. But what is more important is the right way of doing an exercise. Because it is known that if exercise is done in the wrong way, it can be more harmful than of any help. So today, to help us understand what is the right kind of exercise, what should be done, how should it be done, we have invited today Dr. Jayaprakash Jayavelu. Dr. Jayaprakash is the Chief Physiotherapist of Dharamshila Narayan Super Speciality Hospitals based in Delhi NCR. He has more than 25 years of experience as a physiotherapist and has been working in various hospitals. He's a specialist in rehabilitation of stroke patients, a specialist for knee joint patients who have undergone knee replacements and knee joint problems. A doctor who has received many awards. I welcome you today, Dr. Jayaprakash. Thank you very much for joining in. And I hope and I'm sure that today you will be able to show our audience the right kind of exercises, what should be done, how they should be done. Thank you very much. Over to Dr. Jayaprakash. मैंने दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, हिंदी में, मैं बीच में इंग्लिश में भी बात करूंगा। आपको कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ डाउट्स है, पूछना चाहता है तो मुझे रोक के पूछ सकता है, ठीक है। अभी सभी उम्र में देखेंगे तो एक्सरसाइज लाइक डॉक्टर अमन ने लाइक डिटेल बता दिया, बहुत सारा इंफॉर्मेशन बता दिया, बट फिर भी लाइक ओके कुछ इंफॉर्मेशन से दोबारा मैं बता दूंगा। एक्सरसाइजेस ऐसा एक चीज है जिसमें लाइक ओके सारा बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकता है एंड ट्रीट भी कर सकता है। कोई भी बीमारी जैसे नेक पेन है, बैक पेन है, नी पेन, एंकल पेन, एनी पेन और हेडेक, ओके, ये एक्सरसाइज की वजह से लाइक ओके प्रिवेंट भी कर सकता है। आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, ये सब लाइक ओके प्रिवेंट हो जाता है। एंड आपको प्रॉब्लम हो रहे
तब भी नी पेन हो रहा है तब भी एक्सरसाइजेस करना, नेक पेन हो रहा है एक्सरसाइज करके लाइक आपको पेन को लाइक दूर कर सकता है, गर्दन में पेन है, हेडेक हो रहा है, उसमें भी लाइक ओके आप एक्सरसाइजेस कर सकता है। उसके अलावा ये तो बाहर वाला लक्षण है, उसके अलावा दिल का बीमारी आप एक्सरसाइज करने से दिल का बीमारी को दूर कर सकता है। एंड ब्रेन लाइक स्ट्रोक, एज डॉक्टर सेड राइटली, if you do a regular exercises like stroke is preventable and heart attack is preventable and all your like okay पेट का प्रॉब्लम है, किसी का कॉन्स्टिपेशन है, उसको भी आप प्रिवेंट कर सकता है एक्सरसाइज करने से। एंड आपको किसी का लाइक ओके मेमोरी का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी लाइक एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। व्हाट डू यू कॉल डिमेंशिया बोल सकता है, अल्जीमर बोल सकता है, या तो लाइक ओके डिप्रेशन बोल सकता है। आप मोटिवेशन मेंटल लेवल ऑफ लाइक ओके थोड़ा लाइक सुस्त लग रहा है, लाइक लो मूड लग रहा है, वो सब एक्सरसाइज करने से लाइक ओके दूर कर सकता है। कौन कौन सा एक्सरसाइजेस करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम समझा देंगे। खाली एक्सरसाइज से लाइक ठीक होगा और कुछ भी जरूरत है, खाली एक्सरसाइजेस नहीं है, उसके अलावा भी लाइक 2-3 चीज मैं बता दूंगा जिससे आपको हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है। एक डाइट के बारे में मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी आपका डाइट न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए। ओके 24 घंटे में आई मीन इट हैज टू बी 12 घंटे आप जो लाइक ओके दिन का टाइम में लाइक ओके स्पेस्ड आउट होना चाहिए। ये नहीं है लाइक ओके ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, सिर्फ खाली लंच ले रहे हैं या डिनर ले रहे हैं, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी लाइक ओके स्प्रेड आउट और 4 meals or 5 meals a day। 5 meals मीन ये नहीं है हेवी मील है, सुबह उठ के लाइक ओके चाय और बिस्किट ले लिया, उसके बाद लाइक ओके ब्रेकफास्ट किया, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, देन मिड डे लाइक कुछ स्नैक्स ले लिया, देन लंच एंड देन लाइक ओके इवनिंग स्नैक्स एंड देन लाइक डिनर। बट द कैलोरी इनटेक पूरा दिन में देखेंगे तो मोटा मोटा देखेंगे तो 1800 किलो कैलोरीज 2000 किलो कैलोरीज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके फैटी डाइट नहीं करना है, वो बहुत सबसे जरूरी है। एक्सरसाइजेस के पहले डाइट ठीक से लेना है, वो एक चीज है। उसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में हम तो डिटेल बता देंगे। उसके अलावा एडिक्वेट वाटर इनटेक, आपको दिल की बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है तो 2 से 3 लीटर लेकर के लिक्विड्स लेना है। नींद एडिक्वेट होना चाहिए, 8 घंटे का नींद होना चाहिए। ये दीज आर द थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन जरूरत है। अभी हम एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारा तरीके का एक्सरसाइज होता है। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। उसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, एंड कुछ लोग पिलेट्स बोलते हैं, योगा बोलते हैं, एंड देन लाइक ओके जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस। बट उम्र के हिसाब से देखेंगे तो जो 50 प्लस है प्रेफरेबली मॉडिफाइड एक्सरसाइजेस होना चाहिए। सभी चीज लाइक जैसे कुछ लोग लाइक शीर्षासन करते हैं योगा में, वो मेरे ख्याल से अवॉइड करना है, कुछ योगा अवॉइड करना है। बट अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं योगा के हिसाब से। बट ऑन एन एवरेज कितना देर का एक्सरसाइजेस करना है पूछेंगे तो 1 घंटे का एक्सरसाइजेस होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का एक्सरसाइज होना चाहिए। उसमें 15-20 मिनट आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होना चाहिए, 15-20 मिनट थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एंड 15-20 मिनट लाइक ओके एरोबिक एक्सरसाइज। दिस इज द मिनिमम। ओके दिस शुड बी पार्ट ऑफ लाइक ओके एंड 6-7 आवर्स ऑफ एक्टिविटी। आप दिन में देखेंगे तो आप रिटायर्ड हो गया, इनके 60 प्लस है रिटायर्ड हो गया, दिन में देखेंगे तो 6 घंटे का एक्टिविटी होना चाहिए। 6 घंटे का एक्टिविटी में 1 घंटे खाली एक्सरसाइज के लिए। 6 घंटे में आप लाइक ओके उसके अलावा भी लाइक ओके टीवी देखना है, कुछ खेलना है, स्पोर्ट कुछ इट कुड बी कार्ड्स और कैरम और चेस, वो सब लाइक ओके उसके अलावा 1 घंटे का एक्सरसाइज मिनिमम होना चाहिए। ओके उससे ज्यादा करेंगे तो लाइक ओके अच्छा है, बट उसके बारे में अभी डिटेल एक चीज में बता दूंगा किस दर्द को अवॉइड करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज हम डेमोन्स्ट्रेट भी हम करेंगे। अभी तक का कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकता है, कोई क्वेश्चंस आप लाइक उसके पहले उसके बारे में बताना चाहता है, बताना जरूरी है तो लाइक अभी पूछ सकता है। कोई सवाल है अभी तक? डॉक्टर अमन, इफ यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक लेट मी नो। It's okay. If anybody has any questions, can please ask anytime. But today our focus would be on basically how the basic exercises are done and demonstration of certain exercises of whether it's a knee or for the cervical pain or maybe for the lower back pain. Doctor, I want to ask, at the age of 60-65, what sort of exercises we should do? Very good, very good. And all, what should, yeah. Very good, very good. Once I'll demonstrate the exercises and I'll tell you like okay what exercises like you need to avoid in a different age groups. Okay, पहला शुरू करेंगे गर्दन वाला एक्सरसाइजेस।
नेक पेन के लिए जो एक्सरसाइजेस करना है उसके बारे में मैं डेमोन्स्ट्रेट करके सिखा दूंगा, ठीक है। नेक मांसपेशिया को सही रखने के लिए देखो कि कुछ एक्सरसाइजेस करना है। उसके पहले वो पोस्चर इज इंपॉर्टेंट। जैसे लाइक आप नेक पेन अवॉइड करने के लिए पोस्चर, जैसे जिस तरीके से बैठ के टीवी देख रहे हैं, जिस तरीके से बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, ये सब जरूरी है। इसके साथ ही एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट। कैसे बैठ के जैसे टीवी देख रहे तो आपका ईयर लोब एंड शोल्डर टिप शुड बी इन द सेम लाइन। आप पीठ का सहारा ले लेना, पीठ का सहारा लेके आप बैठ सकता है, बैठ के टीवी देख सकता है, बट हर समय ओके ईयर लोब शोल्डर टिप एवरीथिंग शुड बी इन द सेम लाइन। अब मोबाइल भी देख रहे हैं, ऐसा झुक के देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा झुक के देखने की जरूरत नहीं। डाइनिंग टेबल और टेबल के ऊपर रख लीजिए, टेबल के ऊपर रख के मोबाइल देख सकता है। या कहीं जगह में आपको फैसिलिटी है टीवी में कनेक्ट कर सकता है, टीवी में कनेक्ट कर सकता है तो टीवी में कनेक्ट करके मोबाइल का भी व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह ओके देखना चाहता है तो देख सकता है, कुछ वीडियो देखना चाहता है तो वैसे भी देख सकता है। बट नेक पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से ही ओके सारा दर्द आपका पोस्चर, जिस तरीके से बैठ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, उसी पोजिशन की वजह से भी 50% 50% पेन विल नॉट कम और इट विल गेट डिसअपियर। आपको होगा तो तब भी डिसअपियर हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और लेटते समय पिलो यूज कर रहे तो पिलो शोल्डर को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम लिटा के हम बता देंगे जैसे आप लेट रहे, ठीक है। अभी लेट रहे तो पिलो इस तरफ का ओके आप यूज करना है, ठीक है। शोल्डर भी सपोर्ट करेंगे, शोल्डर भी सपोर्ट करके आप पिलो यूज करना है। कैसे यूज नहीं करना वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ नहीं यूज करना, ठीक है। काली देखो के गर्दन के लिए नहीं करना, बेहतर है आप शोल्डर भी सपोर्ट करेंगे तो शोल्डर भी सपोर्ट करके ऐसा लेटेंगे तो देखो के बेहतर है। तो ये एक चीज है। उसके अलावा साइड में जब लेटते हैं आप पिल्लो को सिर्फ देखो के हेड के लिए यूज करना है, ठीक है। अभी भी देखेंगे, आपको देखेंगे तो सिर्फ गर्दन के लिए, हमें सिर के लिए यूज कर रहे हैं। एंगल ठीक है, is that clear? I think this is a very important thing which has been shown that जब हम straight सीधा लेटते हैं, when we are lying down straight, the pillow should be supporting a part of the shoulder also, and when we are sleeping on our side, then the pillow should be just below the head and below the neck and not on the shoulders. This is a very important thing. Very important. So in that way you're keeping your earlobe, shoulder, tip and everything in the same line. So this is about the neck posture. And टीवी देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये लाइन पर ईयरलोब शोल्डर टिप लाइन पर रख के और दूर बैठने हैं 2 मीटर लेके, कम से कम 2 मीटर डिस्टेंस लेके दूर में बैठ के टीवी वगैरह देखना है। और टीवी का हाइट भी ऐसा होना चाहिए ताकि आप गर्दन को ऊपर करके, मैं दिखा रहा हूँ, गर्दन को ऐसा ऊपर करके नहीं देखना, सीधा ऐसा रख के लेके देख सकता है, सीधा ऐसा बैठ के टीवी को देख सकता है। उस तरफ का पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें गर्दन का पेन अवॉइड करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज कर सकता है। पहला एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये हाथ से अंदर की तरफ दबाना 1 2 3 4 5 और सिर से बाहर की तरफ दबाना 1 2 3 4 5, बट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हिलना जुलना नहीं होना चाहिए है। सिर्फ हाथ से अंदर की तरफ सिर को दबाना है और सिर से बाहर की तरफ, बट गर्दन में हिलना जुलना नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5। सिमिलरली हाथ से आगे की तरफ 1 2 3 4 5 और सिर से हाथ से आगे पीछे की तरफ और सिर से आगे की तरफ, बट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज चारों तरफ 5-5 बार से शुरू कर सकता है, धीरे धीरे बढ़ा के 10 बार कर सकता है। झटके से एक्सरसाइज नहीं करना, आराम आराम से करना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी में भी पोस्चर का ध्यान रखना, ऐसा करके गर्दन को ऊपर करके 1 2 3 ऐसा नहीं करना, सीधा देख के करना। ये कोई भी कर सकता है, सभी उम्र में कर सकता है, कोई भी दर्द होगा तभी भी कर सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरा एक्सरसाइज कंधों को ऊपर नीचे करना, कंधों ऊपर नीचे करना है एक एक्सरसाइज। दूसरा हाथ को इस तरफ करना है। तीसरा दोनों हाथ को पूरा ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर उठाना नीचे करना, पूरा ऊपर उठाना नीचे करना, सामने से उठाना और साइड से भी ऐसा हाथ लेके जाना, ऊपर नीचे, साइड से ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना।
और हाथ को ऐसा टच करना, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 4 5। उसके अलावा हाथ को इस तरफ स्ट्रेच करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उस तरफ। सो दोबारा मैं बता रहा हूं, पहला एक्सरसाइज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। गर्दन को सीधा रख के ये एक्सरसाइज करना। दूसरा एक्सरसाइज कंधों को ऊपर नीचे करना, बिल्कुल ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे करना। तीसरा एक्सरसाइज छाती के लेवल में हाथ रख के ऐसा रखना, हाथ को छाती के लेवल में हाथ रख के इस तरफ देखोगे करना। तीसरा एक्सरसाइज, ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज इस तरफ करना है। चौथा एक्सरसाइज दोनों हाथ को पूरा ऊपर उठाना, नीचे करना, पूरा ऊपर उठाना, नीचे करना। चौथा एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज साइड में, हाथ को साइड में लेके जाना। छठवीं एक्सरसाइज इस तरफ, हाथ कान को, दूसरा कान को टच करना एंड दूसरा कान को टच करना ऐसा। देन सातवां एक्सरसाइज इस तरफ, हाथ को आगे की तरफ, चेस्ट के आगे की तरफ देखो कि क्रॉस करके ऐसा स्ट्रेच करना, ऐसा स्ट्रेच करना। ये 7 एक्सरसाइजेस दिन में एक बार 10-10 बार करेंगे, वो काफी है। 10-10 बार लिखो के ऐसा कर सकता है। हम काफी सारे एक्सरसाइजेस बता दूंगा, मान लो मे बी लिखो के 20-30 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। सारा एक्सरसाइजेस एक बार करने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ एक्सरसाइजेस लाइक मॉर्निंग में कर सकता है, कुछ एक्सरसाइजेस इवनिंग में कर सकता है। ये जो एक्सरसाइजेस हैं, दिस आर ऑल मिक्सचर ऑफ लाइक स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। मान लीजिए लाइक सुबह लाइक आधा घंटे का एक्सरसाइजेस कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, एक सेट ऑफ, एंड इवनिंग आधा घंटे का। सुबह गर्दन का कर लीजिए, कमर का कर लीजिए, शाम को पैरों का कर लीजिए एक्सरसाइजेस। उसके साथ आधा घंटे वॉक में जाना है। समझ में आ रहे हैं? अभी हम गर्दन से दूसरा एक्सरसाइजेस करेंगे। कमर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, गर्दन का बता दूंगा, कमर का बता दूंगा, घुटने का, उसके बाद लाइक एडिशनल एक्सरसाइजेस बता देंगे। ठीक है, कमर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। कमर के लिए पहला एक्सरसाइज पंजा चलाना है। पंजा चलाइए। ये पैरों का एक्सरसाइज बता रहा हूँ, सॉरी, पैरों का एक्सरसाइज बता दूंगा, उसके बाद कमर के लिए आएंगे। पंजा चलाना है, पंजा चला, अपनी ओर खींचो, सीधा करो, पंजे को अपनी ओर खींचना है, सीधा करना। अभी घुटना दबाइए, घुटना जोर से नीचे दबाइए, घुटना दबा के पंजा अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5, घुटना दबा के पंजा अपनी ओर, घुटना को टाइट करना है, उसके साथ पंजे अपनी ओर करना है। ये दूसरा एक्सरसाइज है। और तीसरा, घुटने के नीचे तकिया रखना, तकिया रखिए, घुटने के नीचे तकिया, घुटने के नीचे इस तरफ का तकिया रख सकता है। तकिया रख के दबा के, घुटना दबा के एड़ी ऊपर उठाइए, एक पैर, दाएं वाला पैर, घुटना नीचे दबा के रखना, घुटना नीचे दबा के एड़ी ऊपर उठाना, पंजा अपनी ओर खींचिए। आपको दिख रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेट वंस अगेन। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। घुटना दबाना है, दबा के नीचे रखना है, दबाओ, दबा के नीचे रखना है और पंजे को अपनी ओर खींचना है। वेरी गुड। घुटने के नीचे तौलिया रख सकता है, तौलिया रख के घुटने को जमीन पर लेकर के तौलिया को दबा के रखना है, उसके बाद एड़ी को ऊपर उठाना। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज है। नेक्स्ट आपको पैर ऊपर उठाइए, फिर उठा देंगे, एक पैर को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, नहीं पूरा नहीं, आधा। हाँ, इस तरफ लाइक 30-45 डिग्री उठा के, 45 डिग्री उठा के रोक के रखना। 5 काउंट कर, 1 2 3 4 5, उसके बाद नीचे रखना। दूसरा पैर उठाइए, 1 2 3 4 5, नीचे रखना, उठा के 1 2 3 4 5, नीचे रखिए। ये ठीक है। उसके अलावा पैर बाहर अंदर करना, बाहर लेके
अंदर बाहर अंदर, ठीक है। एक बार दाएं में करना है, एक बार बाएं में करना है। उसके बाद कमर टाइट करना, कमर पटक स्क्वीज करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज पटक स्क्वीज करना, ये हिस्से को स्क्वीज करना, उठाना नहीं है हाथ इधर, ये हिस्से को स्क्वीज करना, कमर टाइट करना, बटक्स को स्क्वीज करके हल्का सा उठाना, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ो, टाइट करो, ये हिस्सा टाइट करो, ढीला छोड़ो। जैसे आपको मान लो ओटी आ रहा है, रोकने के लिए ट्राई कर रहा है, वैसे कमर को टाइट करें ना, उस तरफ का एक्सरसाइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नी पेन के लिए। ये 5-6 एक्सरसाइज जो बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सरसाइज मैं दोबारा बता रहा हूं, पैरों का एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज पंजा चलाना, पंजा आगे पीछे करना, अपनी ओर कूप खींचना, सीधा करना। दूसरा एक्सरसाइज घुटना दबाना, घुटना दबा के पंजा अपनी ओर खींचना, 1 2 3 4 5, घुटना दबाओ, पंजा अपनी ओर खींचो, अपनी ओर खींच के रोको, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़िए, घुटना दबाइए, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़िए, और दबाइए, 1 2। ये दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा, घुटने के नीचे तौलिया रख सकता है या तकिया रख सकता है, तकिया रख के घुटने के नीचे बिल्कुल घुटना दबा के एड़ी ऊपर उठाना, एक एक पैर, घुटना दबा के एड़ी ऊपर उठाना, पूरा नहीं, पूरा पैर नहीं, घुटना दबा के ऐसे ही दबा के एड़ी ऊपर उठाना। एक एक पैर। तीसरा, चौथा पिल्लो हटा देना, पैर सीधा रख के ऊपर उठाए, 30 डिग्री 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 नीचे करना, दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 नीचे करना, दूसरा पैर, ठीक है। 5वीं एक्सरसाइज पैर बाहर अंदर करना, बाहर अंदर, एक एक पैर, दाएं में एक बार, बाएं में एक बार। 6वीं एक्सरसाइज कमर टाइट करना, इस तरफ का, इस तरफ को टाइट करना, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ठीक है, टाइट करो। ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखेगा नहीं, इट इज आपको जो रोकने के लिए ट्राई कर रहा है, पेशाब रोकने के लिए या पोटी आ रहा है रोकने के लिए ट्राई कर रहा है, उस तरफ का मूवमेंट होना चाहिए एक्सरसाइज। 6वीं एक्सरसाइज घुटना मोड़िए, सीधा करिए, नॉर्मल रैक, घुटना मोड़िए, घसीट के, घसीट के, उठाना नहीं, घसीट के सीधा करिए, इस तरफ। दूसरा पैर सीधा करिए, सीधा कर लीजिए, घसीट के सीधा करें, ठीक। अभी हमने गर्दन के लिए एक्सरसाइजेस देख लिया। गर्दन के लिए एक्सरसाइजेस क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, गर्दन के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है देख लिया, 6 एक्सरसाइज बता दिया, और घुटने के लिए बताया 6 एक्सरसाइज। ये 6 एक्सरसाइजेस 10-10 बार करना। मान लो गर्दन का एक्सरसाइज सुबह कर रहे तो कमर का एक्सरसाइज पैरों का एक्सरसाइज शाम को कर सकता है। अभी इसके आगे हम कमर का एक्सरसाइज बता देंगे, कमर का एक्सरसाइज बता देंगे। कमर में जिसको दर्द हो रहा है, कमर में ये बता देंगे, जिसको ज्यादा दूर चलने के बाद दर्द हो रहा है उसके लिए क्या एक्सरसाइज करना है, जिसको ज्यादा देर बैठने के बाद दर्द हो रहा है उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, वो सब लेकर के हम बता देंगे। ओके, और क्या एक्सरसाइज नहीं करना वो भी हम बता देंगे, कमर के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना। बट कमर को एक्सरसाइजेस देखने के पहले पोस्चर इज इंपॉर्टेंट। जैसे बैठने का मैंने पहले ही बोला था, गर्दन के लिए मैंने बोला पोस्चर इज इंपॉर्टेंट, जैसे कमर के लिए भी पोस्चर इज इंपॉर्टेंट।
कैसे बैठेंगे? आपका ईयर लोब शोल्डर टिप, इनको बिठा के दिखा देंगे, इनका देखेंगे तो ईयर लोब शोल्डर टिप सीधा बैठा, ये देखेंगे ईयर लोब शोल्डर टिप और बैक पूरा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इफ यू सी देम, ये पूरा स्ट्रेट लाइन में अनसपोर्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। और पैर देखेंगे, पैर देखेंगे फ्लैट, पैर लेको के पंजा देखेंगे, हम पंजा देखेंगे फ्लैट ऑन द ग्राउंड, इस तरफ का होना चाहिए। और कितना देर ऐसा बैठ सकता है? अब कितना देर एक जगह में बैठ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कितना देर बैठ सकता है? आधा घंटे के ऊपर बैठना नहीं है। हर आधा घंटे या पौने घंटे में, आधा घंटे नहीं है तो पौने घंटे में थोड़ा सा टहल के आना, 1 मिनट के लिए टहल के आ जाइए, 2 मिनट के लिए टहल के आ जाइए। आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, या आपके बच्चों से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कम से कम हर 20 मिनट में वो आपका व्हाट यू कॉल विजन, वो कंप्यूटर से कट जाइए आपका। आप कंप्यूटर से देखने से दूर देखिए, दूसरा जगह में देखिए, 20 मीटर डिस्टेंस में किसी और जगह को देख सकता है। एवरी 20 मिनट्स एंड एवरी 40 मिनट्स और 1 आवर, 40 मिनट्स मान के चलिए, आधा घंटे या पौने घंटे में भी उठ के टहल के 2 मिनट के लिए टहल के वापस आ सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। इसी से आपका कमर दर्द लेके नहीं आएगा या कम हो जाएगा। उसके अलावा अब चलेंगे, जिसको कमर दर्द ज्यादा हो रहा है, मान लो लेको कि बैठने में ज्यादा हो रहे हैं, खड़े होने में ज्यादा हो रहे हैं, जितना चलेंगे उसमें भी लेको कि कमर दर्द आपको कम हो सकता है। आप इस ग्रुप में जिसको लाइक स्विमिंग आता है, मान लीजिए किसी को स्विमिंग आता है, स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग आता है तो स्विमिंग करेंगे तो दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बैक पेन। बट नहीं आ रहा है, स्विमिंग पूल में चलना अच्छा लग रहा है, वो भी कर सकता है, उसी में भी देखो कि आपका कमर का बेस्ट एक्सरसाइज हो जाए। कमर नहीं है, घुटना, शरीर, पूरा शरीर का बेस्ट एक्सरसाइज हो सकता है। उसके अलावा हम अभी कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, 5-6 एक्सरसाइजेस बता दूंगा जिससे कमर दर्द से आराम मिल सकता है। 2-3 तरीके का दर्द होता है कमर के हिसाब से। एक, ज्यादा दूर चलने के बाद, ज्यादा दूर मान लो 10 कदम चलना या तो आधा किलोमीटर चलने के बाद पिंडलियों में दर्द हो सकता है। जिसका उम्र 60 से ऊपर है, प्रिडोमिनेंटली 90% ऑफ द टाइम ये हो सकता है आधा घंटे चलने के बाद, 15 मिनट चलने के बाद कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये एक सिम्टम्स होता है। उसके अलावा एक और लक्षण होता है, ज्यादा देर बैठने में दुखन जैसे लगता है। ये कंप्लेंट्स है प्रिडोमिनेंटली यंगर पीपल के लिए हो सकता है। ज्यादा देर बैठने में मुझे दर्द हो रहा है या खड़े होने में थोड़ा दुखन जैसे लग रहा है, यंग पीपल के लिए मोर कॉमन है। एल्डरली पीपल के लिए चलने के बाद दर्द हो रहे हैं, वो हम बोलते हैं नस दब रहा है, वही मोर कॉमन है। उसके अलावा चौथा चीज है, जैसे बैठे बैठे रहते हैं तो दर्द नहीं होता है, चलते हैं तो दर्द नहीं होता है, बट बैठ के जब खड़े होता हूं तब दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद 2-3 मिनट में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, हम ये 4 चीज, 4 लक्षण के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है ये अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, ये घुटना छाती के पास लेके जाना, एक घुटना छाती के पास लेके जाना, इधर हाथ रख के नीचे रख देना, एक घुटना छाती के पास लेके जाना, सीधा कर लीजिए। दूसरा घुटना छाती के पास लेके जाना, सीधा कर लीजिए। दोबारा करो, दाएं घुटना छाती के पास लेके जाइए, सीधा कर लीजिए। बाएं घुटना छाती के पास लेके जाइए, सीधा कर लीजिए। दूसरा, दोनों घुटना छाती के पास लेके जाइए, दोनों घुटना को थोड़ा चौड़ा रखिए। ठीक है, सीधा कर लीजिए। दोनों घुटना छाती के पास लेके जाइए, सीधा कर लीजिए। तीसरा, अगेन दोनों घुटना छाती के पास लेके जाइए, सीधा कर लीजिए। तीसरा एक्सरसाइज, दोनों घुटना मोड़ो, पेट अंदर लेना, पेट को टक इन करना, जैसे देखेंगे गीला छोड़ो, हाँ पेट अंदर लो, 1 2 3 4 5, गीला छोड़ो, हाथ नीचे, गीला छोड़ो,
हाँ, अंदर लो। ये मॉडल का पेट नहीं दिख रहा है, 6 पैक्स नहीं है, बट फिर भी लिखो कि पॉट बेली नहीं है। आइडियली देखेंगे ऊपर करो, पेट को बाहर करो, बाहर करो, पेट अंदर बाहर आए, अभी अंदर जाएगा, अंदर करो, अंदर 1 2 3 4 5 गिला चलो, बाहर करो, अंदर करो, अंदर करो, 1 2 3 4 5 गिला चलो। ये एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारा लोग कर सकता है। या तो हाथ को पीछे पीठ में रख के दबाने के लिए कोशिश करते हैं, दोनों घुटनों में, हाथ को इस तरफ का कमर के पीछे रख के दबाने के लिए, हाथ को दबाने के लिए, कमर से दबाने के लिए कोशिश कर सकता है। 1 2 3 4 5 गिला छोड़ो, 1 2 3 4 5 गिला छोड़ो। ये 3 एक्सरसाइज है। एक घुटना छाती के पास लेके जाना, दोनों घुटना छाती के पास लेके जाना, पेट को अंदर लेना, इस तरफ कर सकता है, हाथ को पीछे रखें, ये सारा उम्र में कर सकता है। ये एक्सरसाइजेस आपको थोड़ा सा चलने के बाद दर्द हो रहे हैं तो ये एक्सरसाइजेस से आराम मिल जाएगा। मान लीजिए 15 मिनट चलने के बाद आपको पिंडली में दर्द हो रहा है, ये 3 एक्सरसाइजेस करेंगे, इसी में आराम मिल जाएगा। बट आपको ज्यादा देर लेके, ओके, इसके अलावा 2 एक्सरसाइज और बता रहा हूँ। एक क्रंचेस है, छाती इधर रखो, घुटना मोड़ो, दोनों घुटना मोड़ो, हाथ इधर रख के छाती ऊपर उठाओ, छाती ऊपर उठाओ, नहीं ऐसा नहीं, सिर उठाओ, इस तरफ का नीचे कर लीजिए, उठाइए, इस तरफ का। आपको गर्दन में दर्द नहीं है, गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक्सरसाइज आराम से कर सकता है। थोड़ा सा स्लाइड करो हाथ, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइजेस है। आपको ज्यादा दूर चलने में लेको के दर्द हो रहे तो ये सारा फायदा है। बट मान लो आपको कुछ भी दर्द नहीं है, ओके, कुछ भी दर्द नहीं, 3-4 एक्सरसाइजेस और बता रहा हूँ। कमर उठाइए, इधर हाथ रखिए, कमर उठाइए, 1 2 कमर उठा के दोनों घुटना मोड़ के ऐसा कमर उठाना है, नीचे रखिए, कमर उठाइए, कमर उठा के 1 2 3 4 5 नीचे रख लीजिए, कमर उठाइए, 1 2 3 4 5 नीचे कर लीजिए, ठीक है। बस वैसे देखेंगे तो ये 4 5, एक घुटना छाती के पास, दोनों घुटना छाती के पास, दोनों घुटना मोड़ के पेट अंदर लेना और कमर उठाने वाला, ये 4 एक्सरसाइजेस करेंगे कमर के लिए काफी है। और ज्यादा उल्टा लेट के एक्सरसाइजेस करने के लिए जरूरत नहीं है। उल्टा लेट के एक्सरसाइजेस करेंगे आपको ऑलरेडी कंप्रेशन होगा कमर में, एज की वजह से थोड़ा कंप्रेशन, नस दब रहे होगा, वो ज्यादा हो सकता है, इसलिए उल्टा लेटे बेहतर है, अवॉइड करेंगे। बट आपको कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, सालों भर कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, उल्टा लेट के कर रहे हैं, आपको आराम मिल रहा है, आपको कोई दर्द नहीं है, तब कर सकता है। बट आपको ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कुछ नहीं कर रहे, कमर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो आपका पैरों में दर्द हो रहा है, तब वो एक्सरसाइजेस नहीं करना। ये 4 एक्सरसाइजेस करेंगे तो काफी है। I am Subramaniam. My right hip has been operated. So my right leg is shorter than the left one. It's 4 to 5 inches shorter. And that is like as if that leg doesn't have life. It's just dangling. So what exercise can I do, doctor? Right hip has been operated. Yes, that's been operated. There Operated. was but that has been removed. क्या था प्रॉब्लम? राइट हिप में क्या प्रॉब्लम था? क्या सर्जरी हुआ? हाईवे एक्सीडेंट. एक्सीडेंट है? क्या सर्जरी हुआ? I had a highway accident and my right hip was totally smashed. So they had put that steel implant there. Okay, hip replacement हुआ है. हाँ, hip replacement हुआ था. Now they have removed in 2016. That was the 7th surgery which I had undergone. That implant is removed, so that leg has become shorter now. So I'm wearing. Hip joint is not there. Pardon me? Hip joint is not there. Yeah, it's not there now. Not there. आप चल रहे नहीं चल रहे? Yeah, I move with a walker. With one for that foot, I'm wearing a heel in that. Please.
slipper. Hmm. Four and a half inches. I have put that sole there, and then I'm using that. And Okay. I move with the walker. Without the walker, I can't move. ओके जो 6 एक्सरसाइज में बताया, दोबारा मैं बता दूंगा आपको। जो 6 एक्सरसाइजेस हमने जो समझाया था पैरों के लिए, वो सारा एक्सरसाइजेस आप कर सकता है। उसके अलावा आपको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। जो लिम्ब लेंथ, एक पैर छोटा है तो कितना छोटा है मेजर करना पड़ता है। वो कमर का हिस्सा होता है, एक हड्डी होता है। एक कमर का हड्डी इधर हिप आगे रखेंगे, एक आपको हड्डी दिखेगा बेल्ट बोन, उधर से ये एंकल तक, एंकल में एक बोन होता है। I'll show my ankle, okay? I'll show my ankle. This one, इधर तक का मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट अंदर की तरफ का मेजरमेंट लेना है। आपको कितना इंच फर्क है वो देखना पड़ेगा। इन केस देखो कि आपको 4 सेंटीमीटर देखो कि शॉर्ट है, तब आप शू रेज ऐसा करना है। 4 सेंटीमीटर के लिए शू रेज नहीं करना, आप 3.5 सेंटीमीटर के लिए शू रेज करना। वो एक चीज याद रख लेना। उसके अलावा जो 6 एक्सरसाइज में बता, एक पंजा चलाना है और घुटना नीचे दबा के पंजे को अपनी ओर खींचना है। एक पंजा चलाना है। ऑलरेडी आप कर रहे होगा ये सारा एक्सरसाइज। ये वाली मैं कर सकती हूँ, बट और घुटना दबा के तकिया के बिना घुटना दबाना है। घुटना दबा के 1 2 3 4 5 ढीला छोड़िए। घुटना दबा रहे, टाइट कर रहे, ये मांसपेशियों को टाइट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ना है, ये करना है। और उसके बाद घुटने के नीचे तौलिया रखें। मेरा हाथ रखा है, आप तौलिया रख के दबा सकते, दबाओ, दबा के एड़ी ऊपर उठाना। ये तीसरा। चौथा, कमर टाइट करना, कमर को टाइट करना, बटक स्क्वीजिंग, इधर 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 टाइट करना। हाथ रख के करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही स्क्वीज करना, वैसे ही स्क्वीज करना। 1 2 3 4 5 ढीला छोड़िए, कमर टाइट करिए। 1 2 3 4 5 ढीला छोड़िए। ये चौथा। एंड पांचवी, घुटना मोड़ो, सीधा करो। जॉइंट नहीं है बट फिर भी जितना मोड़ सकता है, एक एक पैर जितना मोड़ सकता है मोड़ के सीधा कर सकता है, मोड़ के सीधा कर। lift with my hand and then I have to bend it, doctor. नो प्रॉब्लम, वो कर सकता है। एंड उसके बाद जितना पैर बाहर अंदर लेके जा सकता है, जेंटल बाहर अंदर लेके जा सकता है, वो कर सकता है। ये मांसपेशियों को For this I need somebody's help, because of its own it won't go out, because it's lifeless. That leg has become lifeless. So are you walking around? Yeah, with the walker. So life doesn't what you call lies in the leg alone. This is the problem we have seen few patients of similar conditions हमने देखा है, but जितना patient मैंने देखा है उससे अच्छा, like okay, from your voice I can see that you're doing a much better than other patients. Vimla ji. Yes. Vimla ji, you are doing much better than other patients. You are like, your voice is lively and full of energy. I think this exercises will help you to, like, okay, cope up with your problem. Okay. Right, doctor. It's not a problem at all. It's like okay, somebody is living with diabetes. Diabetes means like पूरा जिंदगी like diabetes का दवाई लेना है या शुगर कंट्रोल करना है, उस तरफ का ये भी प्रॉब्लम वैसे है। इसलिए like okay, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। You can easily like okay, you can concentrate on other things. For this, you can do 6 exercises. That is good enough. और नीचे बैठ नहीं सकता है, बहुत लो कोच में बैठ नहीं सकता है। This is all like little limitations होगा, but you can cope up with that. Yeah, cross legs I can't. Cross leg नहीं करना. Yeah, can't squat. But in all age group, cross leg I would rather say avoid करने के लिए। एक पैर क्रॉस करके लेकिन अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। एंड पलटी मार के लेकिन जमीन पर बैठना बेहतर है। एल्डरली पीपल अवॉइड दैट लाइक पोस्चर, पलटी मार के जमीन पर बैठना। ठीक है, हाँ जी। इज दैट लाइक आंसर्स योर लाइक क्वेश्चन मिसेस विमला जी?
हाँ जी। आपका सवाल के लिए लिखो के जवाब थोड़ा तो मिला होगा, ऑलरेडी आप कर रहे होगा, बट हाँ। फिर भी लिखो के आई एम रेटरेटिंग दैट पॉइंट। ओके ओके। बट इसमें हैंड साइकिलिंग आप कर सकता है, जितना हाथ का साइकिल, जो पेडल मिल हाँ। जाते हैं 1500 2000 3000 में देख आपको मिल जाता है पेडल अमेजोन, उसको यूज करके हैंड साइकिलिंग करेंगे, दैट विल कॉम्पनसेट फॉर योर लेस एक्टिविटी विद योर लेग्स। ज्यादा दूर चल नहीं पा रहे हैं, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हाथ का साइकिलिंग कर सकता है। बट Okay. हाथ का साइकिलिंग जब करेंगे धीरे धीरे लेग के ड्यूरेशन बढ़ाना है। स्टार्ट विद 10 minutes, इंक्रीज इट टू लेग 15 minutes, इंक्रीज इट टू 20 minutes, and ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे करिए, वो काफी है, बिकॉज हैंड साइकिलिंग टेक्स मोर एनर्जी देन लेग साइकिलिंग। Okay. Any other questions? There was a question about Really boosted my confidence, doctor. Thanks a lot for that. No, I am getting energy. Mrs. Subramaniam, Vimla Subramaniam, I got a lot of energy. I was not in a very energetic mood. Today, after speaking to you, I thought like, okay, I can do much better than like, okay. I am getting energy. Lovely talking to you. I think that's very interesting. That's very nice. And thanks a lot, doctor. Thanks a lot. एंकल पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकता है. दिस इज वन एक्सरसाइज यू कैन जस्ट डू. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. दिस इज वन एक्सरसाइज. एंड सेकंड थिंग इज लाइक ओके, एडी ऊपर करना, पंजा ऊपर करना. इट्स लाइक अ टेलरिंग. एडी ऊपर, आई मीन पंजा ऊपर करना, एडी ऊपर करना, पंजा ऊपर करना, एडी ऊपर करना, पंजा ऊपर करना, एडी. दिस इज ऑल्सो सेकंड एक्सरसाइज. बट इफ यू हैव अ पेन, एडी में आपको पेन है, एंकल इज ग्रॉस रीजन, आपको हील में पेन है, या तो देखो कि इस जैम व्हाट यू कॉल दैट, दिस फोकस दैट, इधर पेन है. इफ यू हैव पेन हियर इन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल, ये एक्सरसाइजेस करेंगे, इसमें बेहतर होगा. उसके अलावा भी एक पैर में आप खड़े हो सकता है, एक पैर में खड़े होके होल्ड कर सकता है, 1 2 3 4 5 ढीला छोड़िए. दूसरा पैर में खड़े होके होल्ड कर सकता है, 1 2 3 4 5 ढीला छोड़िए. और एक पैर को आगे रख के खड़े होना, एक पैर को पीछे रख के एक लाइन पर खड़े होना, टैंडम वॉकिंग लाइन पर. ये एक्सरसाइजेस करने से आपका, और सीढ़ी चढ़ना, इफ यू हैव अ स्टेपर, में स्टेप रखा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. आपको बैलेंस अच्छा है, क्या करना है, किसी बैलेंस इतना अच्छा नहीं है तो आपका हैंड रेल पकड़ के ऊपर नीचे करना. एंड देन देखो कि यू कैन क्लाइम डाउन एंड अप, क्लाइम डाउन एंड अप. ये ओवरटली बता रहा हूँ. जो एक्सरसाइजेस अभी मैं बताया था, जो दोबारा बताऊंगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है. एक पंजा ऊपर नीचे करना, पंजा ऊपर नीचे करना. दूसरा पंजा ऊपर एडी ऊपर, पंजा ऊपर एडी ऊपर, पंजा ऊपर एडी ऊपर. दूसरा, और तीसरा पैर को सीधा रख के, पैर को सीधा रख के इस तरफ पूरा पंजे को स्ट्रेच करना. एबल टू सी दिस? फोकस करो इधर, इधर कैमरा नीचे. पंजे को सीधा करना, पैर घुटने को सीधा रख के पंजे को स्ट्रेट करना है. तीसरा, चौथा है एक पैर में खड़े होना, एक पैर में खड़े होना, दूसरा पैर में खड़े होना. चौथा. पांचवी, एक पैर आगे पीछे, आगे पीछे. छठवीं, स्टेपर में देखो के आप पैर ऊपर नीचे रख सकता है, पैर ऊपर नीचे रख सकता है. ये एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज कौन कर सकता है. ये एक्सरसाइज आपको हल्का सा पेन है घुटने में, एंकल में हल्का सा पेन है, ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका नसों और मांसपेशिया, जो एंकल के अराउंड मांसपेशिया का ताकत बढ़ जाएगा, एंड उससे एंकल वाला पेन दूर हो जाएगा. या थोड़ी देर चलने के बाद दर्द हो रहे हैं एंकल में, ये सारा एक्सरसाइजेस कर सकता है. बट आपको सीवियर शूटिंग पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा शूटिंग पेन हो रहा है, सूजन है, तब ये एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता. किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके असेस करने के बाद कर सकता है. आपको हल्का फुल्का पेन है एंड वो भी ज्यादा चलने के बाद हो रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो एक तालमेल बेहतर हो जाएगा, पंजे में तालमेल बेहतर हो जाएगा. बट इसमें एक और चीज है, एक पैर में खड़े होंगे तो किसी चीज को पकड़ के खड़े होना, बिना पकड़ के खड़े नहीं होना. ठीक है जी, बिना पकड़ के खड़े होंगे तो गिरने का अवसर है. ये हो गया important. कोई एक्सरसाइज करें, whatever exercise anybody is doing, there should be a proper support system so that we not tend to fall.
सबका तालमेल एक जैसे होता है। बैलेंस के लिए 2-3 एक्सरसाइज बता दूंगा। ओके, बैलेंस के लिए कदम ताल किसी चीज को पकड़ के पैर ऊपर नीचे ये सिंपल एक्सरसाइज है। पैर खिड़की या किसी चीज को पकड़ के ये कर सकता है। उसके अलावा लाइन पर, एक लाइन पर चल सकता है, एक लाइन पर ऐसा, एक लाइन पर चल सकता है। जैसे देखेंगे तो एक लाइन आगे पीछे, एक पैर आगे पीछे, बट आगे पीछे कर सकता है, एक लाइन पर भी चल सकता है। और तीसरा साइडवेज वॉकिंग, पैर बाहर अंदर, एक ही जय में कर रहे तो पैर बाहर अंदर, खिड़की या किसी चीज को पकड़ के पैर बाहर अंदर करना। ठीक है, यू कैन डू अ साइडवेज वॉकिंग और लाइन वॉकिंग विद सपोर्ट। ये बैलेंस का इंप्रूव होगा। नींद नहीं आ रही तो सिंपल सी चीज है, खाने के बाद 8 बजे डिनर ले रहे हैं, डिनर लेने के बाद मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, और कुछ भी लिखो कि लैपटॉप नहीं देखना। ओके, कुछ भी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, व्हाटएवर, लाइक ओके, मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन, ये सब नहीं देखना 2 घंटे के लिए, 8 से 10 बजे तक। तब क्या कर सकता है, थोड़ा सा टहल सकता है, 30 मिनट्स के लिए टहल सकता है, या तो आप बुक पढ़ सकता है। आपका चश्मा है, चश्मा यूज करके एक बुक पढ़ सकता है। इफ यू आर हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, 15-20 मिनट के लिए बुक पढ़िए, वो भी इंटरेस्ट नहीं है, गपशप करिए आप, लाइक आपस में दोस्तों के साथ गपशप करिए। ये 8 बजे ये करेंगे, 10 बजे आपको नींद आ जाएगा। आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे तक आप टीवी देख सकता है, उसके बाद 2 घंटे। ओके, जो आपको 2 घंटे नींद सोने के 2 घंटे पहले ये सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज को हटा के उस समय थोड़ा टहल सकता है, थोड़ा गपशप कर सकता है, या मोबाइल नहीं, या बुक पढ़ सकता है। ये 2-3 चीज कर सकता है, क्योंकि एक चीज है। एंड उसके अलावा आपका खाना भी 2 घंटे के पहले फिनिश होना चाहिए। आपका डिनर मिनिमम 2 आवर्स होना चाहिए, स्लीप के पहले डिनर फिनिश होना चाहिए। बट उसके बाद भूख लग रहे हैं, क्या करेंगे, थोड़ा बिस्किट लेना है या चाय, नॉट चाय, आप दूध लेना है तो ले सकता है। डिनर के बाद आपको मिडनाइट में भूख लगेगा तो थोड़ा दूध ले सकता है या फल ले सकता है। ठीक है, ये डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आपका नींद का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा मिनिमम एक्टिविटी आपको 1 घंटे का और एक्टिविटी, एक्सरसाइज एक्टिविटी 1 घंटे का होना चाहिए। एंड पूरा एक्टिविटी इन डे 5-6 घंटे का होना चाहिए। सब चीज लाइक बिस्तर में लेट के नहीं। आप टीवी देखना है तो डाइनिंग हॉल में जाके लेके ओके देखिए, टीवी देखिए। खाना खाना है तो थोड़ा दूर होके, या तो कुर्सी में बैठ के, सेम रूम है तो कोई बात नहीं, कुर्सी में बैठ के टीवी देख सकता है, कुर्सी में बैठ के खाना खा सकता है। एवरीथिंग, यू जस्ट डू एवरीथिंग इन द बेड, देन इट कैन लीड टू स्लीप प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। It's been very interesting today to listen to so many, to not only listen but also see so many exercises and what Dr. Jayaprakash has been showing. It has been a very good program today. Thank you very much, Dr. Jayaprakash. It was really interesting. Even I learned a lot of things. Even I was, while you were showing, I was trying to correct my posture while sitting on the chair. And also, you know, when you were doing the ankle exercises, I was also sitting on the chair. I was doing that. And also, what I learned today was, you know, that what to do at night to get a good night's sleep, because aapko neend aise bhi nahi aati hai. So anyway, it was really nice. Thank you so much for this program, and we would definitely like to invite you again for more discussions in our future programs. Definitely. And we thank you for that. And well, I'll take one minute. There's like okay, couple of things you can share. I mean, Dr. Aman can share my number or like okay the link for feedback and any questions, further questions. I'll be able to like okay answer. You can like okay share your questions to Dr. Aman. Through him, I can answer all your like questions. Absolutely. Please, as everyone knows that we at Care for Parents are trying to provide you healthcare at home. So if you have any queries, you can message us. You can request us. We can fix an appointment with the doctor. We can help you out for any other help that is required, and we can even connect you with Dr. Jayaprakash through telemedicine if required, and even physically we can help you getting a appointment fixed up with him. So thank you very much. It's been a lovely audience. You have really you have been here listening to us, seeing the exercises, and thanks for the questions that have been asked. And we really look forward to meet everyone again on the last Saturday of next month. Thank you.
Okay, thank you very much.